Oh, you must tell this, for I'm really sorry, girls on Zoom. I'm really sorry for this inconvenience. I'm really sorry. Welcome to this class. Someone said, okay, Nafisa, I'm really sorry, dear. Thank you so much, Nafisa, for reminding me. I forgot to unmute my mic. Thank you so much, dear. Okay. So, when it comes speaking English, it's very important to speak English like English people speak. If you speak local English locally, it's okay. No problem. Please mute your mic. I am saying this again and again. Please don't do this. Class disturb hoti hai, Okay, so I am saying that if you speak local English locally, it's okay, no problem. People will be happy, they'll be fine with that. Okay? अगर आप बोलते हैं like हमें कितने English आती है, I am fine, I am good, Alhamdulillah, I can speak English, I know everything, how are you, I am fine. Can I ask you something? Okay, do you understand English? Can you speak English? These types of questions, I think we all can speak, okay? A lot of us know a lot of things, but we don't try to speak English. When we don't try to speak, we can't able to improve. And when we don't improve, we are not confident. And when we don't confident, we are not able to speak. We will not communicate to others, okay? So there is a question for you girls. Do you speak English? Do you speak English or not? Yes. How much? How much English can you speak or do you speak? I can speak English normally. Okay, normally. And anyone else? Not very dull. Little. Okay. Yes, I can speak English. Okay. Oh, no, I can't. Actually, it's okay. Okay, there are multiple types of students like, yes, ma'am, I can speak little bit, okay? And I know there are many students who can gain confidence while speaking English. So, but globally or internationally, you should have standard accent of English, Okay, yes, I can speak English. Okay, yes, I do, but some words. Okay, Sana. अच्छा, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं और कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं. So, when I was learning to speak in English, there was this problem that used to bother me a lot. I was able to understand everything in English, Sometimes ऐसा होता है कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं. I don't speak English, but you are speaking right now, Yeah. I think yes, well, hello, not. ये सब हम सब बोल सकते हैं, ठीक है? But what's the important thing? We can understand every single word in English. हमें पता चलता है कि नेक्स्ट पर्सन हमारे साथ इंग्लिश में क्या बात कर रहा है, ठीक है? क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. But when it comes me to speak in English, ठीक है? God knows what happened to me. I was unable to speak English at all because we have zero confidence. ठीक है, हमारे पास इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता. We can just write English. ठीक है, हम बचपन से एक चीज हमारे वो आया, मे बी just in a written form or just write not speak. Okay, क्योंकि हमने बचपन से we can write English. एक चीज हम बचपन से इंग्लिश सिर्फ लिखते रहे हैं, हमें बोलना नहीं आया, कभी हमने बोला नहीं. वो spoken is the most important part. Everything comes later. Speaking सबसे पहले आती है, practice सबसे पहले आती है. तो practice आपके spoken की होती है. It's not your mother tongue. This is not your mother tongue. I mean, how are you supposed to be as fluent in English as you are in your mother tongue?
you would never be. I believe never be. Mother tongue is that we are blessed with something. We are naturally good at it. But if you want to learn any other language, you need to put in some work, some effort, and that is what we are trying to do here. Okay? And that is what I am saying. Okay? So I was saying about the accent and the British English and locally, internationally and the global English. You must know the standard accent of English. I mean, it's quite difficult to develop British or American accent as you're going to stay in Pakistan. But you can actually have standard accent of English. Now, what is standard accent of English? Standard accent is like your English is not Punjabi English. Your English is not on a Saraiki styled English. It's out of that. Okay? अब सराइकी पंजाबी टच वाली इंग्लिश या उस स्टाइल वाली इंग्लिश कैसे we can speak English. Okay, it's true. यहाँ please mute your my girls, please don't disturb our class and requesting. I don't know why you are behaving like this, but I already told you there are some rules that you need to follow, girls. अगर आप चाहते हैं कि हमारे आप कहेंगे कि मैम 1 और 2 बहुत कम है, ठीक है, तो मैम मैक्सिमम हमारे पास टुवर्ड्स होने चाहिए. लेकिन अगर आप क्लास को इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे लिए तो टुवर्ड्स भी जो है ना बहुत ही कम होता है. क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना, क्लास को ज्वाइन करते ही फौरन से खुद को म्यूट कर लेना है, ठीक है, ताकि पहले आपको लेक्चर डिलीवर कर दिया जाए. उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे आई गिव यू 20 मिनट्स एट द एंड ऑफ द क्लास. जितने भी क्लास लेक्चर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे एंड पे मैं आपके क्वेश्चंस होंगी, उसके बाद हम क्लास कंडक्ट करेंगे, ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि आप कंफ्यूज हैं और टीचर ने कहा है कि नहीं 1 और जो है वो कंप्लीट हो गया है तो हम क्लास कंडक्ट करें, ऐसा बिल्कुल भी. लेकिन आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर कॉपरेट करना पड़ेगा. ओके, सो आई वाज सेइंग कि हमारे पास हमारी जो इंग्लिश है ना, सबसे पहले तो एक्सेंट की बात आ जाते हैं. पीपल यूजुअली आस्क मी, मैम आई वांट टू लर्न अमेरिकन इंग्लिश, मैम आई वांट टू लर्न ब्रिटिश इंग्लिश. सो रिमेंबर, यू कैन नॉट लर्न ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन इंग्लिश. I mean, first you need to focus normal global English. And after that, if you get a chance to go to that country, there you can learn American, British, all that. If you know English, you can easily improve your accent, girls, okay? Like एक student मेरे पास आता है, ma'am, I want to learn British English. Okay? Yeah, I want to learn Canadian English. Okay, so can you speak English? No, ma'am, I can't. तो अगर आप लोकली ग्लोबली इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है, लाइक हाउ आर यू, आई एम फाइन, अगर इस चीज को ही आप क्लियर आउट नहीं कर सकते, लाइक आपको यही नहीं पता कि इंग्लिश में किसी का हाल कैसे पूछना है, तो आप फिर वो ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश वो सिर्फ एक एक्सेंट है, ठीक है. सबसे पहले यू नीड टू लर्न इंग्लिश, ओके, स्टैंडर्ड एक्सेंट ऑफ इंग्लिश, जो भी इंग्लिश का होता है, मीन्स के आपकी इंग्लिश में पंजाबी, सराइकी, मदर टंग वाला टच नहीं होना चाहिए. अब वो टच कैसे होता, लाइक एक, अब फॉर एग्जाम्पल आई एम पंजाबी, तो बोलूंगी आई एम टॉल, ओके, वर्ड क्या होता है टॉल, आई एम टॉल, तो टॉल नहीं मैं बोल रही हूँ आई एम टॉल. आई एम स्मॉल, स्मॉल नॉट स्मॉल, आई एम सेइंग आई एम स्मॉल. तो पहले इंग्लिश को इंग्लिश की तरह सीखें. इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है एटलीस्ट उस स्टैंडर्ड को लर्न करें, ओके. उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सेंट. एक्सेंट की सब चीजें बात जाती हैं. पहले सबसे हम क्या सीखेंगे, इंग्लिश को सीखेंगे. इंग्लिश में बहुत सी चीजें आ जाती हैं. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर टीचर, ठीक है, अपने टीचर्स को. फर्स्ट यू नीड टू बिकम अ गुड लिसनर, ओके. और ये एक ऐसा पॉइंट है गुड लिसनर जो आप आफ्टर 3 months when we'll complete your course or session and जो हमारा डे होता है ना, उस डे पे भी आप ये सुनेंगे कि मैं आपको कहूंगी फर्स्ट यू नीड टू बी अ गुड लिसनर, ओके.
So I am assuring you, you are going to be a good, or inshallah, be a fluent English speaker if you follow my advice that I'll give you in this course, okay? So you will be fluent inshallah, and it's a guarantee that I am taking girls. हमें क्या करना है, प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग करनी है. हम क्या करते हैं, एक्चुअल स्पीकिंग नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते. नाउ यू कैन डू दिस. In this course, we will be given you spoken groups in which you will be able to conversate with your partners, with your fellows, okay? So this is the main activity we'll do inshallah, and the main activity is speaking, practicing, and all the things, okay? Shazia, please wait. Okay, next is introduction. Myself and about this course. My introduction, so girls, I am delighted to introduce myself as your instructor for this program. I am Khusnood Afzal, and I have completed my master's, and you can say 16 years of education and many other courses in English language. And I am committed to creating an engaging and formative environment where you can enhance your language skills. So about this course, we will explore various aspects of the English language, engaging in interactive discussions, and have the opportunity to ask questions during the trial classes. So following the trial classes sessions, we will establish groups to facilitate further learning and collaborations. I wish you all the best in your academic endeavors. I hope you understand what I mean, girls. I'm sure gonna have the recording. Inshallah, you'll give, but I will discuss you at the end, okay? About the recording. Why this course is important. So the next point is this. Why this course is important. First of all, the first point is curiosity. Don't worry, girls, if it seems tricky at first, okay? We'll get better and better with the practice. अगर आपको ये अभी difficult लग रहा है, yes, Sadia, Shazia. Take a minute, girls. Yes, Shazia, you can unmute your mic now. Shazia Sadiq. Yes, I am here. Yes, Shazia? Yes. Yes, do you want to ask something? No, but I am in the class now. But I want to speak English fluently, but I have no time. Please do something for me. I am in the class right now. And in this class, I am in the another class. Why? Quiet students. I am a teacher, but I can't speak English too much fluently. Your head stop here, Shazia. Okay, we'll discuss this at the end, inshallah. Okay, so we were talking about the curiosity. Okay, girls, अगर ये आपको, I was saying कि अगर आपको ये difficult लग रहा है इंग्लिश को लर्न करना, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होता है, ठीक है, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत आप में से बहुत अच्छे भी होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के होंगे. आपको पता है कि टीम वर्क जो होता है ना, टीम वर्क क्यों इम्पोर्टेंट होता है, टीम वर्क का मतलब क्या होता है. अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होती कोर्स में एडमिशन लेने पर और अपने साथ स्टूडेंट्स को साथ लेके चलने पर. ठीक है, लाइक स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि हम बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, ठीक है, कोर्स का क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्राइटेरिया है, हम किस तरह से चल रहे हैं. तो ये सारी चीजों को ना आप अपने माइंड में रखते हैं, ठीक है, आप अपने नहीं, आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीजों को. तो
उस हिसाब से अगर आप देखेंगे आपको चीजें कुछ कुछ को बहुत ज्यादा ट्रिकी लग रही होंगी, लेकिन कुछ बहुत इजी लग रहा होगा। तो जिनको ट्रिकी लग रहा है, तो कोई चीजें मुश्किल लग रही है ना, परेशान नहीं होना, ठीक है। इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू टॉक टू पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो चीजें बस मैं आपको बताऊंगी ना, आपने वो करनी है। यू मस्ट रीड द अमेजिंग बुक्स एंड यू मस्ट इवन वॉच योर फेवरेट कार्टून्स इन इंग्लिश। इंग्लिश को आपने अपनी लाइफ बना लेना है फॉर 3 months, ओके। एंड सो कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली हैव फन। इंग्लिश को अपने जिस तरह कहते हैं ना कि हमने किसी चीज को इस तरह से नहीं लेके चलना है कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया है, हम इसको लर्न नहीं कर सकते, बहुत ट्रिकी हो गया है, इट सीम्स लाइक ना हम नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमने खुद को कह दिया ना वी कांट डू दिस, ठीक है, वी आर अनएबल टू डू दैट, तो फिर आप कभी भी नहीं कर सकते। खुद को ये आपने कभी भी नहीं कहना कि नो आई एम अनएबल टू डू दिस। सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स तजस्सुस। व्हाट इज क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी तजस्सुस। और कहते हैं कि गर्ल्स को, वेमेन को तो बहुत ज्यादा तजस्सुस होता है चीजों को लेके, ठीक है। जैसे हमें मेकअप की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, कुकिंग की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो क्यूरियोसिटी इज लाइक हैविंग अ स्पेशल पावर दैट हेल्प्स यू टू लर्न एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स। जब आप में तजस्सुस होता है ना किसी चीज का, तो आप चीजों को बहुत ज्यादा डिस्कवर करते हैं, नई चीजों को सीखते हैं। सो व्हेन यू आर क्यूरियस अबाउट समथिंग, लाइक अगर आप इंग्लिश के बारे में क्यूरियस है ना, यू आस्क क्वेश्चंस टू योर टीचर्स, टू योर फेलोज, यू एक्सप्लोर थिंग्स एंड सीक्स आंसर्स। लाइक अगर आपने देख लिया कि एक टीचर क्लास में नहीं है, आपने देख लिया कि हमारी जो फेलो है ना ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, तो हम इससे क्यों ना इससे कुछ हेल्प ले ली जाए। और वो फेलो भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप दूसरों को सिखाते हैं आप ज्यादा सीखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस करें अपने फेलो से, अपने टीचर से। सो इट्स लाइक बीइंग अ डिडक्टिव सर्चिंग। आप चीजों को सर्च करें, उनको सॉल्व करें, क्वेश्चंस करें। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करते हैं उतने ज्यादा आप लर्न करते हैं, आपको पता है। और मैं कहती होती हूँ कि देयर इज नो एज ऑफ लर्निंग। आपको अगर मैं बताऊं, मेरे पास 65 years ओल्ड भी स्टूडेंट्स होते हैं, यू नो। नो मैटर व्हाट एज वी आर इन, लर्निंग नेवर एंड्स फॉर अस। अभी ये नहीं है कि मैं टीचर हूं तो मैं सीखती नहीं हूं, मैं पढ़ती नहीं हूं, मैं भी अभी तक सीख रही हूँ। इंग्लिश की बहुत ज्यादा डेप्थ होती है गर्ल्स, वी आर ऑलवेज इन लर्निंग प्रोसेस। मैं भी अभी तक सीख रही हूँ न्यू थिंग्स, न्यू कुछ भी मेरे सामने आते हैं, वर्ड्स, न्यू वोकैबुलरी आ जाती है हमारे सामने, उनको हमने लर्न करना होता है। Curiosity helps you to learn English in a fun way too. You'll wonder what new words mean, how to use them. Like if वो आपने ये पढ़ा था, ये सीखा था, लेकिन आप इंग्लिश डिक्शनरी में है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। जैसे ब्रिटिश पहले हैरी पेन ज्यादा होती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब ब्रिटिश इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब ब्रिटिश में क्या है, एक्सेंट के साथ साथ उसकी वोकैबुलरी भी चेंज है। उसमें क्या होता है कि आपने न्यू वर्ड्स को लर्न करते हैं, एंड व्हाट द बेसिक स्टोरीज कैन टेल विद देम। आप न्यू वर्ड, न्यू सेंटेंसेस, फ्रेजेस को देखते हैं। जैसे आपने कोई इडियम देख लिया, बहुत फनी इडियम होता है, उनको आपने देखा कि हाउ टू यूज इट विद इन अ सेंटेंसेस। फिर आपने उसको अपने डेली रूटीन में या सेंटेंसेस में चूंकि आप यूज करके उसमें ऐड ऑन किया, तो योर क्यूरियोसिटीज विल take you on incredible adventures and help you to become a superstar learner, okay? कभी भी और क्यूरियोसिटी जो है इसके जस्टिस करें, लेकिन अच्छी चीजों को लेकर। जैसे अब ये लैंग्वेज है ना, इसको लेके आप क्यूरियस हो जाए। इफ वी सी समवन स्पीकिंग इंग्लिश, वी वंडर दैट व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट ही इज लाइक। एक एक्सेंट अगर हम किसी का देख लेते हैं ना, कोई पर्सन बहुत अच्छा बोल रहा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल आई कांट स्पीक इंग्लिश, तो मैं किसी को देख रही हूँ कि ये पर्सन वर्ड वाज स्पीकिंग इंग्लिश, बहुत अच्छा लगता है उसके वो इसका बोलने का अंदाज और वो सब कुछ बहुत अच्छा है, लाइक इम्प्रेसिव जिसको हम बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलना और एक ग्लोबल इंटरनेशनल और फिर एक्सेंट के साथ बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न। सो नो मैटर विच इंस्टीट्यूशन यू गो टू, your degree is of no value if you cannot speak English with confidence. कुछ लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ इंग्लिश बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस है लेकिन फ्लुएंसी नहीं है, ओके। तो कवर अप ऑल द थिंग्स।
The second point is listen, speak and repeat. Okay? Listen, speak and repeat. सुने, बोले और दोहराना. So first you listen carefully to the words and sounds. Like अब sounds कैसे sounds जो हमारी phonetic sounds होती हैं, like एक word. एक स्टूडेंट से अगर हम पूछें कि एक मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि मुझे ना ABC सुनाए. ठीक है, आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स आते हैं? एंड शी सेड मैम यस. मैंने बोला चलो इससे A B C D. तो एंड शी सेड एट दैट टाइम कि मैम आई वांट टू लर्न अमेरिकन इंग्लिश. और लास्ट पे जाके वो जेड को बोल रही है इट्स नॉट एन अमेरिकन इंग्लिश, यू नो. अगर आपको कुछ सीखना है ना तो आप सबसे पहले अच्छी लिसनर बन जाए. ठीक है, सॉन्ग्स पर लर्न करें, वर्ड्स पर लर्न करें और देन यू स्पीक अप एंड रिपीट व्हाट यू हियर. ठीक है, आपने कभी देखा है कि वो पैरट मिमिकिंग, देखा वो अपने फेवरेट फ्रेजेस को किस तरह से बोलता है. ठीक है, सो यू हैव टू लिसन मी एंड देन से माई वर्ड्स लाउडली. कि जो टीचर बोल रही है हमने उस तरह से लेके चलना है. एंड फाइनली यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अंटिल इट बिकम्स सेकंड नेचर. आप इस तरह नहीं है कि हमने उर्दू फॉर एग्जाम्पल हमारी पर जो भी है हमारी लैंग्वेज है तो हमने इसको लेकर चलना अब इंग्लिश की तरफ. ठीक है, listen, speak and repeat. It's like a magic formula that helps you to master new words, phrases and pronunciation. ठीक है, so don't be shy. Listen closely, speak confidently and repeat with the smile. अपनी टीचर को सुने, अपने फेलोज को सुने, वो क्या वोकैबुलरी क्या यूज कर रहे हैं. ठीक है, फिर उनसे क्वेश्चंस करें. ये अब 3 months है ना, यहाँ पर आपने बिल्कुल शाय नहीं होना. यहाँ पर सब सीखने के लिए आए. आपने ऐसे नहीं करना कि नहीं अगर मैं पूछूंगा तो ये तो कहेगा इसको कुछ आता नहीं है. तो हम यहाँ पर सब लर्नर्स हैं. ठीक है, सब सीखने के लिए आए. अगर आपको सब कुछ आता होता तो आप यहाँ पर ही क्यों होते. ठीक है, तो अगर आपके फेलो को पता है आपको नहीं आता तो आप उनसे क्वेश्चन करें, आप अपने टीचर करें. और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स के आप अपनी टीचर से कुछ पूछ नहीं सकते. आप अपने टीचर को किसी भी टाइम मैसेजेस नहीं कर सकते. ठीक है, आप जब कहें अपने टीचर को आई एम योर टीचर, आई एम योर इंस्ट्रक्टर, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक्स्ट मी. ओके, आप जब चाहें मुझे टेक्स्ट करें. ठीक है, आप मुझसे क्वेश्चंस करें और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को जितनी जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल फॉर मी कि मेरे स्टूडेंट्स को है ना आज से. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर से कह रही हूँ कि मैंने अपने 9 कोर्सेज जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली और बहुत अच्छे वे में. एक मैंने अपने स्टूडेंट्स को लेके चलना और मल्टीपल स्टूडेंट्स अब तो याद भी नहीं है कि कितने ही होंगे. ठीक है, तो लाइक हमारी एक क्लास में 100+ स्टूडेंट्स थे. तो अभी इसमें तो मुझे नहीं पता कि कितने हैं. तो इस चीज को लेके चलना कि सब स्टूडेंट्स अपने आंसर्स मिल जाए क्वेश्चंस के. ठीक है, 1 by 1 टर्न बाय टर्न सबकी बारी आएगी. ठीक है, इस तरह नहीं करना कि टीचर ने उसको आंसर कर दिया, मुझे आंसर नहीं किया तो मैंने सेकंड टाइम नहीं पूछना. इस तरह बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, अगर टीचर तो उसको आंसर कर दिया है, आपका पता नहीं, आप फिर से नहीं. ठीक है, लेकिन सबको आंसर्स मिलेंगे. Zoomers, please rejoin the meeting.